Good morning and Jai Hind, dear students. Welcome to class of geography. Dear students, from last period we have started a new chapter and the name of the chapter is human resources. We have already discussed few topics of the chapter. We discussed that how human is a resource and how it is distributed among the world. We discussed that according to distribution of population in the world, whole world is divided into three: thickly populated areas, moderately populated areas, and sparsely populated areas. Dear students, we have discussed that thickly populated areas are those areas where many people are living, where the concentration of people is more. So all the river valleys, all you can say the plains of the world, they are thickly populated. Then what about moderately populated areas where the number of people is less than thickly populated areas? They are known as moderately populated areas. And then we discussed about sparsely populated areas. So sparsely populated areas are those areas where population is very less, like deserts of the world, forest areas of the world, mountainous areas of the world, mountainous regions of the world. So we have already discussed these things today, and now we will discuss the other topics of the chapter. So it is my humble request to all my students, please open this chapter, and the chapter is human resources. So let's start today's period. So dear students, the chapter is human resource, and today we will discuss about फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. देखो लास्ट पीरियड में हम लोगों ने डिस्कस किया कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से वर्ल्ड को कैसे डिवाइड किया जा सकता है, एंड नाउ ये जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, व्हाट आर द फैक्टर्स which affects the distribution of population. So no single factor can explain the uneven distribution of population in the world. देखो ये जो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना पॉपुलेशन पूरी दुनिया में, कोई एक फैक्टर उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता. That's why it is written that no single factor can explain the uneven distribution of population in the world. It can only be explained through the interaction of different social, physical, cultural and economic factors. कई सारे फैक्टर्स के इंटरेक्शन से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, एंड द फैक्टर्स और यू कैन से द इंटरेक्शन लाइक different social, physical, cultural and economic factors. If I'm talking about the physical factors, then it includes relief, climate conditions, natural vegetation, soil and water availability. अगर हम दूसरे फैक्टर्स की बात करें तो फिजिकल फैक्टर लाइक रिलीफ, क्लाइमेटिक कंडीशंस, नेचुरल वेजिटेशन, सॉयल एंड वाटर अवेलेबिलिटी. और अगर मैं दूसरे फैक्टर्स की बात करूं सो अदर फैक्टर्स इंक्लूड मिनरल डिपॉजिट्स, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, अर्बनाइजेशन and migration. So dear students, now we will discuss about these factors. So
So the first one is relief. The first factor is relief. देखो, the plains have higher density of population as compared to mountainous regions. देखो, जो प्लेन्स हैं दुनिया के, जो प्लेन्स हैं वर्ल्ड के, वहां पर डेंसिटी जो है पॉपुलेशन की वो ज्यादा है अगर इसको कंपेयर करें माउंटेनियस रीजन्स से. मींस प्लेन हैव हायर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देन माउंटेनियस रीजन्स. The steep slopes, the steep mountain slopes restrict the availability of agricultural land, industries, transportation and settlement. जो माउंटेन स्टीप स्लोप्स है ना, तो जो माउंटेन्स के स्लोप्स है वहां पर एग्रीकल्चरल लैंड अवेलेबल नहीं हो पाता, वहां पे इंडस्ट्री सेटअप करना इज वेरी टफ, ट्रांसपोर्टेशन स्प्रेड करना बहुत मुश्किल है, एंड सेटलमेंट. तो ये जो क्यों ऐसा, प्लेन्स में ये प्रॉब्लम नहीं है, प्लेन्स में ये सारी चीजें सेटअप की जा सकती हैं, बट माउंटेनस रीजन्स में एग्रीकल्चरल लैंड, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेटलमेंट इज नॉट पॉसिबल. देखो, अगर एग्रीकल्चरल लैंड, इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्टेशन अगर वहां पे एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा तो सेटलमेंट कैसे एस्टेब्लिश किया जाएगा. और इसीलिए द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज इन इंडिया. इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो सबसे ज्यादा डेंस पॉपुलेशन वाला एरिया है. अगर आपसे पूछे कि जो इंडिया का सबसे पॉपुलेटेड, डेंस पॉपुलेटेड एरियाज कौन से हैं, तो दे आर द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. ओके, नाउ the next one is climatic conditions. देखो, टेम्परेचर एंड रेनफॉल इट इन्फ्लुएंस द कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन एनी एरिया. किसी एरिया का टेम्परेचर और रेनफॉल क्या है, ये वहां के लोगों का कंसंट्रेशन जो है इससे बहुत इंफ्लुएंस होता है. इसका मतलब टेम्परेचर एंड रेनफॉल दे इन्फ्लुएंस अ लॉट द कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन कैसा होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस एरिया का टेम्परेचर और रेनफॉल कैसा है. आई मीन दैट एक्सट्रीम क्लाइमेट discourages concentration while moderate climate favors human settlement. एक्सट्रीम क्लाइमेट, जहां पे बहुत ज्यादा ठंड, वेरी कोल्ड विंटर्स, वेरी हॉट समर्स, ये क्या हो गया, वेरी कोल्ड विंटर्स एंड वेरी हॉट समर्स जो है दैट इज एक्सट्रीम क्लाइमेट. तो जहां पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा ना, वहां पर जो है कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन वो डिस्करेज होगा. कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन उतना ज्यादा वहां पे आपको नहीं मिलेगा, वहां पे वो उतना डेंस नहीं होगा. लेकिन जहां पर क्लाइमेट मॉडरेट है वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट्स आपको मिलेंगे, बिकॉज इट फेवर्स ह्यूमन सेटलमेंट. देखो, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एक्सट्रीम क्लाइमेट में वेरी कोल्ड विंटर्स, वेरी हॉट समर्स, हाउ यू कैन सर्वाइव, तो वहां पे कंसंट्रेशन बहुत कम होता है. लेकिन जहां पे मॉडरेट क्लाइमेट है, जहां पे विंटर्स बहुत कोल्ड नहीं होते, है ना, समर्स बहुत हॉट नहीं होते, वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट, ये ह्यूमन सेटलमेंट को फेवर करता है. मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कनाडा लिव्स इन अ नैरो बेल्ट व्हिच हैज रिलेटिवली वार्म क्लाइमेट. कनाडा का जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो एक नैरो बेल्ट में कंसंट्रेटेड है, क्योंकि वो एरिया है जहां का क्लाइमेट वार्म है. लेकिन बाकी जगहों पर जो कंसंट्रेशन है पॉपुलेशन का वो ज्यादा नहीं है. क्लियर? सो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कनाडा लिव्स इन ए नैरो बेल्ट which has a relatively warm climate. After that, the next one is natural vegetation. So dear students, dense and inaccessible forests grow in hot and humid areas. देखो, अगर कोई एरिया हॉट और ह्यूमिड है तो वहां पे डेंस और इनअसेसिबल फॉरेस्ट ग्रो करेंगे. इनअसेसिबल फॉरेस्ट मतलब जहां पे आप जा ना सके, जो इतना डेंस हो कि आप वहां पे जा ना पाए. तो ये फॉरेस्ट किस एरिया में ग्रो करते हैं, तो एरियाज ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. एंड सच कंडीशंस डिस्करेज पॉपुलेशन हैबिटेशन.
और अगर ऐसा कंडीशन है तो वहां पे पॉपुलेशन हैबिटेशन नहीं हो पाएगा ज्यादा, वो डिस्करेज करेगा ये कंडीशन। इसीलिए द अमेजन एंड द कॉन्गो बेसिन्स हैव नो लार्ज सेटलमेंट्स एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी लो। इसीलिए जो अमेजन और कॉन्गो बेसिन्स है ना, बहुत इनअसेसिबल फॉरेस्ट हैं यहाँ पे, डेंस फॉरेस्ट हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सेटलमेंट्स नहीं हैं, बड़े बड़े सेटलमेंट्स नहीं हैं, और यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत कम है। तो एरियाज ऑफ डेंस एंड इनअसेसिबल फॉरेस्ट्स like the Amazon and Congo basins have no large settlements and the population density is very low। यहाँ पे population density कैसी है, वो बहुत कम है। After that, soil। Look students, the fertile alluvial and lava soils can support more population than the desert, mountain and laterite soil। देखो ये जो फर्टाइल अलुवियल सॉइल है या लावा सॉइल है, ये ज्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है अगर इसको कंपेयर करें डेजर्ट सॉइल, माउंटेनियस सॉइल एंड लेटराइट सॉइल। क्योंकि अलुवियल और लावा सॉइल जो है ज्यादा फर्टाइल है, कल्टीवेशन इस पे ज्यादा बेहतर होता है, तो डेफिनेटली ये ज्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट करेगा अगर इसको कंपेयर करें डेजर्ट, माउंटेन एंड लेटराइट सॉइल से। The development of ancient civilizations in the river valleys was due to fertile soil। ये जो जितने भी एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं उनका डेवलपमेंट रिवर वैलीज की तरफ हुआ। उसका व्हाट वाज द रीजन, एक तो वाटर वाज अवेलेबल एंड जो रिवर वैलीज के जितने भी एरियाज हैं वो बहुत वहां का सॉइल बहुत फर्टाइल था। सो द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट civilizations in the river valleys was due to fertile soil। वो fertile soil की वजह से हुआ। At present, the introduction of new farming techniques have changed the impact of soil in some areas to extent। अगर आज के डेट की बात करें तो द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फार्मिंग टेक्निक्स, फार्मिंग में बहुत नए नए टेक्निक्स आ गए हैं ना, सो द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फार्मिंग टेक्निक्स, इसने क्या किया है, सॉइल के इंपैक्ट को थोड़ा चेंज कर दिया है। ठीक है ना, वहां पर जो है अब नई टेक्निक्स की वजह से फार्मिंग पॉसिबल हो पाया है। तो सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू नो दैट हाउ पॉपुलेशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। आफ्टर दैट, water availability। look students, human cannot survive without water। वाटर के बिना ना ह्यूमन रह सकता है ना लिविंग थिंग्स रह सकते हैं। सो रिवर्स आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। आपको पता है कि रिवर्स फ्रेश वाटर के बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। दे सप्लाई वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट। वो वाटर किसको किसको सप्लाई करते हैं, तो आपके घरों के काम के लिए डोमेस्टिक पर्पसेस, एग्रीकल्चर के लिए फॉर इरिगेशन, इंडस्ट्रीज के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए। तो रिवर्स सप्लाई वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट। दस पीपल टेंड टू सेटल इन द रिवर वैलीज। इसलिए लोग जो है रिवर वैलीज के आसपास सेटल हो जाते हैं क्योंकि वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी होती है। इवन इन द डेजर्ट ओएसिस हैव परमानेंट सेटलमेंट। यहां तक कि अगर आप डेजर्ट में भी जाएं तो ओएसिस जहां पे वाटर अवेलेबल हो जाता है डेजर्ट में, वहां पर परमानेंट सेटलमेंट्स है क्योंकि वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी है। तो वाटर की अवेलेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर वाटर अवेलेबल है तो वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी, परमानेंट होगी, बड़े सेटलमेंट्स होंगे। वाटर अवेलेबल नहीं है तो वहां पे सेटलमेंट्स नहीं होंगे क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू लिव विदाउट वाटर। ठीक है, यहां तक कि डेजर्ट में भी केवल वहीं पर परमानेंट सेटलमेंट्स है जहां पर ओएसिस है, जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी है। देन द नेक्स्ट वन इज मिनरल रिसोर्सेज डियर स्टूडेंट्स।
द एरियाज इन रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स अट्रैक्ट पीपल। देखो ऐसा कोई भी एरिया जहां पर बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट्स हो तो ये बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है, और दिस रिजल्ट्स इन हायर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, और वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग रहने चले जाते हैं, और वहां पर जो है पॉपुलेशन की डेंसिटी हाई हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द गोल्ड माइंस इन ऑस्ट्रेलिया अट्रैक्ट पीपल टू दिस अदरवाइज बैरन डेजर्ट लैंड। जो गोल्ड माइंस ऑस्ट्रेलिया का है, इसने इस मिनरल डिपॉजिट की वजह से ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, वरना वो तो बैरन डेजर्ट लैंड है, लेकिन वहां पर गोल्ड माइंस हैं, तो वो बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट किया कि वो वहां पर रहे। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रीज, डियर स्टूडेंट्स। द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन एनी रीजन प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखो किसी भी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट जो है किसी भी रीजन में, वो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, वो बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। तो लोग क्या करते हैं, दस पीपल माइग्रेट टू सच एरियाज नॉट ओनली फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज बट ऑल्सो फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस। तो ये जो इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं जो बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, वहां पे लोग माइग्रेट होके चले जाते हैं, केवल आसपास के एरिया से नहीं बल्कि बहुत दूर दूर से भी। जैसे अभी आपने देखा होगा कि मुंबई में जब कोरोना काल में हजारों लेबर्स वहां पे अट्रैक्ट हुए थे, क्योंकि वहां पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं। अहमदाबाद में हजारों लाखों जो लेबरर्स हैं वो अट्रैक्ट हुए थे। तो पीपल माइग्रेट टू सच एरियाज, लोग उस एरियाज में चले जाते हैं, और केवल आसपास से नहीं दूर दूर से भी जाते हैं। द इंडस्ट्रियल एरियाज सपोर्ट अ वेरी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज इन नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए। तो ये जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं ये भी बहुत हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं, जैसा कि आप नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए में देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए इंडस्ट्रियल रीजन है, इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन वहां पे पॉपुलेशन की डेंसिटी भी बहुत हाई है। देन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अट्रैक्टेड टू दोज एरियाज व्हिच हैव एन एडिक्वेट एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देखो लोग उसी एरियाज में अपना इकोनॉमिक एक्टिविटीज करना चाहते हैं जहां पर ट्रांसपोर्टेशन का जो नेटवर्क हो वो एफिशिएंट हो और एडिकेट हो। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अगर एडिकेट होगा, एफिशिएंट होगा, तो बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां पे होंगे, और अगर बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगे तो वहां पे सेटलमेंट भी बढ़ेगा। Most of the cities are located either in the plains or along the coast, which provide adequate transportation facilities. ज्यादातर जो शहर हैं वो कहां पे लोकेटेड हैं प्लेन्स में, वो या तो कोस्ट के आसपास, और ये वो एरियाज हैं जहां पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बेहतर है। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज किसी एरिया में बेहतर होगा तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, वहां पर बड़े से बड़े शहर जो है सिचुएटेड होंगे, और इसीलिए वो जो एरियाज हैं दे आर थिकली पॉपुलेटेड। ये एरियाज कैसे हैं, ये एरियाज वहां पे थिकली पॉपुलेटेड है, वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। आफ्टर दैट अर्बेनाइजेशन, डियर स्टूडेंट्स, अर्बेनाइजेशन, अर्बन सेंटर, जो शहरों की बात करते हैं हम। सो द अर्बन सेंटर्स हैव डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अर्बन सेंटर में बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं, डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं। Moreover, the urban areas also provide better living conditions than the villages. वैसे ये जानिए कि ये जो अर्बन एरियाज हैं या जो शहर हैं वो बेहतर लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं अगर उसको कंपेयर करें विलेजेस से। शहरों में लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर है विलेजेस से। Thus, people migrate to cities in search of work. तो लोग क्या करते हैं, वो शहरों की तरफ आ जाते हैं काम की खोज में। एंड अर्बन एरियाज बहुत डेंस पॉपुलेटेड एरियाज हैं। दे हैव मोर देन 5000 पर्सन्स लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड में 5000 पर्सन्स तक रहते हैं। तो दे आर थिकली पॉपुलेटेड। ओके, देन
लास्ट टॉपिक इज डियर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये जो लास्ट टॉपिक है ये गवर्नमेंट पॉलिसीज है। देखो समटाइम्स द गवर्नमेंट पॉलिसीज कॉज माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। कई कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से भी लोग एक जगह से दूसरे जगह को माइग्रेट करते हैं, एंड इट इज द कॉज। व्हाट इज दैट? दैट इज द गवर्नमेंट पॉलिसीज। अंडर द ब्रिटिश रूल इंडियंस वर सेंट टू मलाया, फिजी एंड मॉरिशस टू वर्क ऑन द प्लांटेशंस। जब इंडिया में ब्रिटिश का शासन था तो उन्होंने बहुत सारे इंडियंस को कहां कहां भेजा? मलाया, फिजी और मॉरिशस में, जिससे कि वो वहां जाएं और वो प्लांटेशंस में वर्क कर सकें। इवन द ब्लैक्स फ्रॉम अफ्रीका वर ब्रॉट टू वर्क इन अमेरिका। यहां तक कि ब्लैक्स जो अफ्रीका के हैं उनको अमेरिका लाया गया काम करने के लिए। So, under the British rule, Indians were sent to Malaya, Fiji, and Mauritius to work on the plantations, and the blacks from Africa were brought to work in America. Blacks जो थे अफ्रीका के, उनको अमेरिका लाया गया काम करने के लिए। So, dear students, these were the factors which affect द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ये वो फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज रीड ऑल द टॉपिक्स केयरफुली, एंड व्हेन आई विल कम टू नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस द अदर टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।